بہت بڑھتا گیا اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں آ گئی۔ یروشلم میں شاگردوں
کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا. یسوع کے نام, in the name that is above every other name, یسوع کے نام ویلنسیا کے اندر شاگردوں کا شمار بڑھتا چلا جائے گا. یسوع کے نام کے اندر اسپین کے اندر شاگردوں کا شمار بڑھتا چلا جائے گا. یسوع کے نام کے اندر یورپ کے اندر, پورے یورپ میں شاگردوں کا شمار انتہا سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. یسوع کے بابرکت نام میں, یسوع کے سندر نام میں, یسوع کے جلالی نام میں. یہاں تک کہ بائبل میں لکھا ہے کاہن اس کے اندر ملنے لگے, یہودی کاہن بھی شاگردوں میں شامل ہو گئے. آج وہ وقت آ گیا ہے جو لوگ یسوع کو پورے طور پہ نہیں جانتے وہ شاگردوں میں شامل ہونے لگ جائیں گے. روشو تھورو رو بارا بارا نیبرو سو تھورو رو بارا بارا ایشو تھورو رو بارا بارا. اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اور 15 نمبر آئے. The book of Acts chapter 1 verse number 15. اور انہی دنوں پر بھائیوں میں جو تقریباً 120 شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا. اعمال کی کتاب 2 نمبر باب اور اس کی 41 نمبر آئے. پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کو قریباً انہیں مل گئے. اعمال کی کتاب 4 باب 4 نمبر آئی. مگر کلام سننے والوں میں سے بتیرے ایمان لائے, جہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5000 کے قریب ہو گئی. اعمال کی کتاب 4 نمبر باب 32 نمبر آئے. اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل ایک جان تھی, اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا, بلکہ ان کی سب کی چیزیں مشترک تھیں. اعمال کی کتاب 5 نمبر باب اور 14 نمبر آئے. اور ایمان لانے والے مرد اور عورت خدا کی کلیسیا میں اور بھی کثرت سے آ ملے. اعمال کی کتاب 5 نمبر باب 42 نمبر آئے. اور وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہیں آئے. اعمال کی کتاب 6 نمبر باب 1 نمبر آئے. اور ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانی کی شکایت کرنے لگے, اس لیے کہ روزانہ خبرگیری میں ان کی بیویوں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی. اعمال کی کتاب 8 نمبر باب اور اس کی 7 اور 8 نمبر آئے. کیونکہ بتیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا کر نکلی گئی اور بہت سے مفلوج لنگڑے اچھے کیے گئے, اور اس شہر میں خوشخبری ہوئی یسوع کے نام کے اندر. ایسی بہت سی اور آیتیں ہیں جو صرف اعمال کی کتاب میں لکھی گئی ہیں. اس طرح شاگرد بڑھتے گئے. مگر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, لوگوں میں سے بدبوئیں نکلی, مفلوج ٹھیک ہوئے, لنگڑے ٹھیک ہوئے, اور اس شہر میں خوشخبری آ گئی. انجیل خوشخبری ہے. اس شہر کے اندر دکھ تھا, مگر جب شاگرد کھڑے ہو گئے, جب شاگرد زیادہ ہونے لگے, جب شاگرد بڑھنے لگے, تو شہر کے اندر خوشی آنے لگ گئی. ہر وقت کے اندر جب بھی خدا کے لوگ کھڑے ہوئے, شاگرد بڑھے اور نئے کام ہونے لگ گئے. وہ اعمال پہلا باب تھا, اعمال دوسرا باب تھا, اعمال تیسرا باب تھا, اعمال کا چوتھا باب تھا, اعمال کا 5واں باب تھا, اعمال کا 6واں باب تھا, اعمال کا 7واں باب تھا, اعمال کا 8واں باب تھا, کہ اعمال کا 9واں باب کی ایک اور آیت پڑھ لیتے چلے. اس کی 32 نمبر آئی. اور ایسا ہوا کہ پترس ساری جگہ پھرتا ہوا ان ترسوں کے پاس بھی پہنچا جو لدا میں رہتے تھے. اسی طرح اور بہت سی آیتیں ہیں کہ کس طرح شاگردوں تک جگیا جاتا تھا یا کس طرح شاگرد کھڑے کیے جاتے تھے. مگر سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, جو اعمال 6 نمبر باب اور اس کی 7 اور 8 نمبر آیت ہے, جو میں نے کلام شروع کرتے ہوئے پڑھی.
और उन्होंने रसूलों के आगे खड़ा किया और उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे। शिगिर्दों के ऊपर रसूल हाथ रख के दुआ करते थे। और यहाँ पे 6 नंबर बात के अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है पहली आयत के अंदर, और 7 मददगार चुने जाते हैं जो रूह से मामूल होते हैं, जो रूह से भरे हुए होते हैं, जिनके अंदर खुदा का रूह होता है, जो पाक दिल होते हैं, जो पाक दामन होते हैं, अच्छे ईमानदार होते हैं। उन 7 को चुना जाता है और रसूलों पे हाथ रखते हैं कि वो यीशु की खिदमत के लिए मंसूब किए जाएं, वो यीशु की खिदमत के लिए खड़े किए जाएं, वो यीशु की मनादी के लिए तैयार हो और यीशु की मनादी उनकी जिंदगी में से हो। यीशु मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। इसी तरह आज अगर बाप ने जो पढ़ा हम लोगों ने उसकी 32 नंबर आयत के अंदर, क्योंकि बतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से राज कर निकल गई और बहुत से मखलूज और लंगड़े अच्छे किए गए और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। उस शहर में बहुत खुशी हुई। वलेंसिया के अंदर बहुत बड़ी खुशी आने को है। स्पेन के अंदर बहुत बड़ी खुशी आने को है। यूरोप के अंदर बहुत बड़ी खुशी आने को है, क्योंकि यीशु अपने शिगिर्दों के वसीले नए शिगिर्द खड़ा करने को है। यीशु अपने रसूलों के वसीले नए शिगिर्दों को खड़ा कर रहा है। यीशु की जिंदगी के वसीले से मैं और आप जिंदगी पाते हैं, मगर यीशु मुझे और आपको काम सौंप के गया है कि मुझे और आपको दुनिया में जाना है, उनको शिगिर्द बनाना है, ताकि वो किसी और को शिगिर्द बना सके। जब आप शिगिर्द बनाते हैं, आप किसी शहर के अंदर खुशी लेके आते हैं। जब आप शिगिर्द की बात करते हैं, जब लोग यीशु को कबूल करते हैं, तो एक रिवाइवल की बात होती है। वो बेशक कमाल के पहले बात के अंदर हो, जब पतरस के साथ सिर्फ 120 लोग थे, या उस बात के साथ हो जिस 3000 लोग पतरस के साथ आए, या उस बात के अंदर जब उस आयत की बात करें जहां पे 5000 मर्द हो गए थे, मगर आज मैं और आप उनसे कहीं ज्यादा है। आज मेरे और आपके पास उनसे ज्यादा वसाइल है, मगर मैं और आप क्यों यीशु के लिए नए शिगिर्द नहीं बना पा रहे? क्योंकि मैं और आप जब तक शिगिर्द नहीं बनाएंगे, जब तक इस शहर में खुशी नहीं आ सकती, जब तक इस मुल्क में बहाली नहीं आ सकती, जब तक इस मुल्क के अंदर खुशी नहीं देखेंगे, जब तक मौज से नहीं होंगे, लोग यीशु को नहीं जानेंगे। क्योंकि इससे बेशतर तो शहर में खुशी आती, लोगों में से बदबूएं निकाली जा रही थी, लंगड़े ठीक हो रहे थे, मफलूज शफा पा रहे थे। अब वक्त आ गया है कि चर्च यीशु के नाम के अंदर हम लोग खड़े हों और यीशु के नाम के अंदर डिक्लेयर करें, जो बीमारों पे हाथ रखें, बीमारों के लिए दुआ करें, ताकि यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु के नाम के वसीले लोग जिंदगी पाए, यीशु के नाम के वसीले लोग ताजगी पाए, यीशु के नाम के वसीले लोगों की जिंदगी के अंदर जिंदगी हो। क्योंकि अमाल की किताब साफ साफ मुझे और आपको यही बताती है कि जहां पे भी यीशु के रसूल खड़े हुए, जहां पे भी वो जो लोग जो यीशु में आ चुके थे, जो यीशु को कबूल कर चुके थे, जब उन्होंने मुनादी करनी शुरू की तो नए शिगिर्द बनने शुरू हो गए। जब नए शिगिर्द बनने शुरू हो गए तो उस जगह में खुशी आने लग गई, उस मुल्क के अंदर खुशी आने लग गई, उस शहर के अंदर खुशी आने लग गई। क्या मैं और आप उससे यीशु की खिदमत नहीं करते? क्या मुझ में और आप में वो यीशु की कुदरत नहीं है? क्या मुझ में और आप में वही जोर नहीं है जो यीशु ने पतरस को दिया था, जो यीशु ने अपने दूसरे शिगिर्दों को दिया था? मगर फर्क कहां में है? क्योंकि मैं और आप वो नहीं कर रहे जो मुझे और आपको करना है, क्योंकि मैं और आप नहीं कर रहे जो मुझे और आपको करना चाहिए। पतरस क्या करता था? हमारा पहला बाप नंबर आए और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों में जो तकरीबन 120 साल से जमात में खड़ा होकर कहने लगा, वो यीशु की बात किसी को बताते थे, वो यीशु के मुतालिक किसी को बताता था, वो यीशु के मुतालिक किसी को बताना चाहता था। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उस रोज 3000 आदमी के करीबन उनके मिल गए। जिस रोज उन्होंने कलाम को कबूल किया, उनको किसी ने कलाम को सुनाया था। यीशु मेरे और आपके लिए पब्लिकली मरा है। यीशु
मेरे और आपके लिए छुप के नहीं मरा। मैं और आप यीशु के लिए छुप के जिंदगी नहीं जी सकते। अगर आप यीशु के लिए किसी को नहीं बता रहे, अगर आप यीशु को किसी को नहीं बताते, तो आप यीशु से छुप के जिंदगी जी रहे हैं। आप सोचें कि अगर यीशु आपको छुप के मरता, तो आज आप यीशु के घर में आके नहीं बैठ सकते, आज आप यीशु के बेटे या बेटी नहीं कहला सकते। मगर यीशु आपके लिए पब्लिकली मरा है, इसलिए पब्लिकली आपको लोगों को बताना है कि यीशु के बगैर जिंदगी नहीं है। पतरस लोगों को पब्लिकली बताता था, खड़े होकर बोलता था, तो लोग खुदा की जमात के अंदर आ मिलते थे। मगर कलाम सुनने वालों में से बतेरे ईमान लाए, जहां तक के मर्दों की तादाद 5,000 के करीब हो गई। भाई बड़ी सिस्टम तालीम देती है कि जिसको हम कलाम सुनाएंगे लाजमी नहीं वो आपके साथ मेल पड़े। ईसाई के साथ से लिखा हुआ है, चौथा बाप चौथी आए। मगर कलाम सुनने वालों में सिर्फ तेरे ईमान लाए। मतलब कि कलाम और बहुतों ने सुना था, मगर सब ईमान नहीं लाए। मत सोचे कितने लोग ईमान लाएंगे, मगर कलाम तो आप किसी को सुनाएं, आप यीशु का नाम तो किसी तक लेके जाएं, आप यीशु के मुतल्लिक तो किसी को बताएं। बतेरे ईमान लेके आए और मर्दों की तादाद 5,000 हो गई है। अमाल चौथा बाप है और उसकी चौथी आयत है। सिर्फ दूसरे बाप के अंदर पहली दफा शुरू होता है। पहले बाप की 15 नंबर आयत शुरू, पहले बाप की 15 आयत के अंदर 120 लोग हैं और चौथे बाप की चौथी आयत है 5,000। कितने हजार होते हैं? और ईमानदारों की जमात एक दिन और एक जान थी। और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उन सब की चीजें मुश्तरका थी। दोबारा पढ़ने शायद। और ईमानदारों की जमात एक दिन और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उन सब की चीजें मुश्तरका थी। ये वो डेडिकेशन है जिससे जी वो डेडिकेशन है जिससे लोगों को फिरदौस में जाने का हक मिला। ये वो सैक्रिफिकेशन है जिसके उसने लोग यीशु के पास आए थे, क्योंकि एक दिन और एक जान। आप काफी दफा दुआ करते हैं, आपकी दुआ छत से ऊपर नहीं जाती, आप तो खुदा के पास जाते हैं। आपकी लड़ाई के अंदर आपकी दुआ के लिए जब लड़ाई है तो आपकी दुआ छत से ऊपर दुआ नहीं जा सकती। एक ट्रेन की 4 इंजन या 3 इंजन कभी नहीं लगते। एक ट्रेन को एक इंजन लगता है ताकि शाम उसको लिफ्ट कर सकते। एक जहाज को एक पायलट चलाता है, उसके साथ से 2 पायलट होता है, उसको पायलट नहीं बोला जाता, उसको भी 2 पायलट बोला जाता है। पायलट से एक होता है, असिस्टेंट उसके साथ रहता है। एक गाड़ी को एक ड्राइवर चलाता है। अगर आप लोगों की दुआएं नहीं है तो आप लोगों की दुआएं खुदा तक नहीं जा सकती। अगर आप लोग की दुआओं में प्रॉब्लम है तो आप लोग की दुआएं छत से ऊपर नहीं जा सकती। बहुत से चर्चेज है जिनकी दुआ छत से ऊपर नहीं जाती। बहुत से ईमानदार लोग हैं जो ईमानदारी की जिंदगी जी रहे हैं, मगर उनकी दुआ उनके अपने घर से ऊपर नहीं जाती, उनके घर के अंदर दुआओं में लगाते। जब तक आपकी दुआ एक फेस पे नहीं है, जब तक आप कुछ नहीं। यहाँ पर दुआ की बात ही कर रहा है, साफ कह रहा है। और ईमानदारों की जमात एक दिन और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उन सब की चीजें मुश्तरका थी। अगर आप इसको चर्च तक ले लें, मत सोचिए कि आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपकी सब चीजें मुश्तरका नहीं। सिर्फ आप उसको चर्च तक ले लें, आप चर्च में सिर्फ ईमानदार हो गए। आपका ईमान, आपका विजन, आपकी सोच, आपकी दुआ करना सब एक जैसी हो। काफी बदलू परेशान हो जाती है, मैं किसी से एक कहता है नाम को, दूसरा कहता है निकल जा, तीसरा कहता है कहां से आई है, तो सब कुछ कहता है। इनको तो खुद नहीं पता मैंने यहाँ पे किसकी सुननी। क्यों? क्योंकि मुश्तरका नहीं, यूनाइट नहीं।
हम जितनी भी दुआ करें, अगर आपकी दुआ एक फेस पे नहीं, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, आपकी दुआ पर नहीं जा सकती। आप जो प्रस्तिश करते जाएंगे सिर्फ प्रस्तिश होती है, कुछ नहीं और होता। आप खुदा को गा रहे होते हो। अगर आप खुदा को नहीं गा रहे तो आप कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हो। अगर आपको गाना नहीं आता, आपको गाना है, क्योंकि प्रस्तिश का टाइम है, हर चीज का एक टाइम है, हर चीज का एक पैटर्न है, हर चीज का एक ऑर्डर है। आप कलाम के अंदर प्रशिश करने लगे, कलाम के अंदर दुआ करने लगे, तो फिर चर्च में क्यों आए हो? घर पे बैठ के दुआ करते रहते हो। अगर आप खुदा को गाते नहीं हो तो क्यों प्रशिश में बैठे हो? कहीं और बैठ जाओ। ईमानदारों की जमात एक दिन और एक रात थी, और ईमान लाने वाली औरत और मर्द, और ईमान लाने वाली मर्द औरत खुदा की इस्लाम में और भी कसरत से आ मिले, सरमन में मिले, और भी मिलती है। और वो हैकल में और घर में हर रोज तालीम देने और उसकी खुशखबरी सुनाने से यीशु से यीशु ही मसीह है बात ना है। हर रोज घर में भी कलाम सुनाते थे और हैकल के बाद खड़े बड़ी आवाज से चला कर निकल गई, और बहुत से मखलूक और लंगड़े अच्छे किए गए, और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। उस शहर में खुशी हुई जब लंग उनकी जिंदगी में से गई, जब बीमारी उनकी जिंदगी में से गई, जब तकलीफें उनकी जिंदगी में से गई। अगर आपकी जिंदगी में कोई तकलीफ है तो आप खुश में नहीं। अगर आपकी जिंदगी में खुद बदलू है तो आप किसी और को याद नहीं कर सकते। खुदा के लोग चर्च में गए थे, गॉस्पेल सुनना नहीं चाहते, गॉस्पेल सुनना पसंद करते हैं, and that is killing the church। जब आप चर्च में बैठ के गॉसिप को सुनने में अहमियत देते हो तो आप गॉस्पेल को पीछे कर देते हो, और आपके कानों में जितना गॉसिप जाएगा उतना खतरनाक है। मगर जिन कानों में गॉस्पेल या जिन कानों में इंजील गई, उन्होंने यीशु को कबूल किया, और उस कबूलियत से शिगिर्द बढ़ते रहे, जमात बढ़ती रही, कि यहाँ तक कि बाइबल में लिखा और शहर में खुशी आ गई। क्या मैं और आप शहर में खुशी नहीं ला सकते? हमारा किसी चीज से मुकाबला नहीं है, मगर जब रूह जीतने की बात है तो सबके साथ मुकाबला है, क्योंकि हमें यीशु के लिए रूह जीती। अगर दूसरा नहीं जीता तो जो आपको जीती। इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर खुशी एक ही तरीके से आ सकती है जब लोग यीशु की तरफ नहीं, और किसी और तरीके से नहीं आ सकते जब तक आप यीशु का लोगों को नहीं बताएंगे। यीशु आपके लिए सरेआम सबके सामने नंगा होकर सलीब पे चला, तो छुप के कुछ नहीं उसको किया, सरेआम उसने सब कुछ किया। और मैं और आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि यीशु आपसे प्यार करता है और वो आपको लिखता है। मैं और आप किसी को ये नहीं कह सकते कि यीशु के बगैर कोई और रास्ता नहीं। यीशु आपका मेरा मंजर है, तब हम इन रसूलों की तरह, इन शिविरों की तरह खड़े हैं। और उन रसूलों के आगे खड़ा किया, और उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे, और खुदा का कलाम फैलता रहा, और यरूशलेम में शिगिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ता गया, और कानून की बड़े ग्रोह उस दीन के तहत में हो गई। उन शिगिर्दों के अंदर हो गए, रसूलों के अंदर आ गए। मैं और आप क्या नहीं कर सकते, मैं और आप क्या नहीं करना चाहते, मेरे और आपकी वसीयत का क्या नहीं कर सकते।
मत सोचें आपकी सिचुएशन में जी रहे हैं। सिचुएशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि यीशु आपके साथ है। मैं एक बार संडे को देना चाहता था, क्योंकि मैं संडे को भी दूंगा ताकि सब सुन लें। पिता ने मुझे आज एक बात बोली, एस्तर की दुआई के पैसे मिले थे फादर से बड़े। इसे फादर से पूछा, उसने बोला कि जंतु मंतों ने पूरे वलेंसिया में से पूरे सूबे में से चंद बच्चों का नाम चुना और उस बच्ची का नाम उस नाम के अंदर है जिसे गवर्नमेंट मेडिकल के हिस्से में नहीं हुआ। जिसने बोला कि कितनी लगी नहीं है, इट्स द ग्रेस ऑफ गॉड। जो खुदा की खिदमत करते हैं खुदा के पैसे बचाना चाहता है। जैक कोनन बहुत बड़ा इंडिया का फादर है। 25 साल जैसे उसे ये बुक लिखी, जैसे उसे बोला 25 साल पहले मैंने घर बनाया था। मेरे पास कुछ नहीं था, बड़ी मुश्किल से घर बन गया। उसको खानदानी पैसों में से पैसे आए, जायदाद में उसकी बीवी के वजह से, तो उसका घर बन गया। कहता है 25 साल के अंदर मेरे घर का एक भी बल्ब फूट नहीं हुआ। जो बल्ब मैंने 25 साल पहले लगवाए थे वो आज भी कर रहे हैं। खुदा जब आपको बरकत देना चाहता है या खुदा जब आपकी सेविंग करना चाहता है तो आपको खुद भी पता होता कहाँ से होता है। कहता है मेरे बहन भाइयों मेरे दोस्तों ने घर बनाए, पता नहीं कितने बल्ब बदल चुके हैं। मेरे घर के अंदर आज भी वही बल्ब, आज वही ट्यूबें, आज भी वही पंखे लगे हैं जो मैंने 25 साल पहले लगवाए थे। What does it mean? It means the grace of God is still the grace of God. Amen. And will always be the grace of God. आप और मैं अच्छे नहीं हैं, खुदा का फजल जो मेरे और आपकी जिंदगी पे वो अच्छा है। खुदा की ग्रेस मेरे और आपकी जिंदगी में है, उसमें कुदरत है। खुदा का ग्रेस जो मेरे और आपके अंदर मैनिफेस्ट करता है वो वही है जो पतरस के साथ था, जो रसूलों के साथ था, जिनके वसीले कलीसिया बढ़ती गई, जमात बढ़ती चली गई। वो 120 से शुरू करके हजारों में लेके चले गए थोड़े से टाइम फ्रेम के अंदर, और उसको पूरी दुनिया का पालूस के वसीले और दूसरे रसूलों के वसीले ये जीवन पहुंचा। अगर पालूस अकेला कहता मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, पूरे यूरोप के अंदर उसने बना दी, पूरे यूरोप के अंदर उसने जीवन का बीज बोया। एक जब आप एक है आपकी नजर में वो एक है, क्योंकि खुदा की मैथमेटिक्स इस तरह नहीं, क्योंकि जो आपके अंदर बसता है वो कई अरबों खरबों से ज्यादा जुड़ा है, क्योंकि यीशु का लहू, यीशु का रूह है, वो रूह है जो सनसन पर जब वापसी आया उसने कई हजारों को मार दिया। एक सनसन कई हजारों को लेके चला गया। ये वो खुदा का रूह है। इससे तरह से पर जो झूठ की आपकी धरती में खड़ा, ये वो खुदा का रूह है जिसने मूसा के लिए बैरे को जन्म को 2 हिस्सों में खोल दिया। ये वो यीशु है जो मेरे और आपके साथ है, जिसका मौत भी कुछ नहीं बता सके। अगर वो जिंदा है तो हम जिंदा खुदा की तालीम देते हैं। अगर आप सिर्फ ये समझते हैं क्या बोलते हैं, आप बोलते नहीं, आप जिंदा कलाम में बोलते हैं। जो कलाम खुदा के मज़बे से किया जाता है, जो कलाम खुदा के मज़बे से बोला जाता है, उससे कलाम नहीं होता, वो जिंदगी का कलाम होता है। It's not only word, it's the living word of the living God। और जिंदा चीज की जिंदगी दे सकती है। अगर आपका कलाम बोलता है तो आप किसी को जिंदगी नहीं दे सकते, क्योंकि क़यामत और जिंदगी मेरा और आपका यीशु है। अगर यीशु के पास क़यामत की मौत की ताकत है और यीशु का जिंदगी की ताकत है, तो यीशु कहता है जो मर भी जाएगा तो मरेगा नहीं बल्कि जिंदा रहेगा। कलाम कभी भी खाली वापसी नहीं आ सकता। ये खुदा का कलाम है, ये कभी भी खाली वापसी नहीं आ सकता। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त के अंदर जरूर किसी न किसी की जिंदगी में असर दिखा के रहता है। मगर जब ये खुदा के रूह के साथ बोला जाए, जब ये खुदा के रूह
की तारीफ के वसीले बोला जाए, जब ये खुदा के रूह के अंदर रहते हुए बोला जाए, जब ये खुदा के रूह के वसीले दिए हुए कलाम को कलाम दिया जाए, वो यीशु कलमा है। और यीशु जहां पे भी जाता है वो अपना मौजज़ा करके आता है। यीशु आज भी मेरे और आपके मुंह में से निकल के लोगों की जिंदगियों को बदलना चाहता है। वो यीशु मेरे और आपके वसीले लोगों को बदलना चाहता है। वो पतरस के साथ था तो पतरस 120 की जमात के आगे खड़ा था, मगर जब वो 120 की जमात के आगे खड़ा था तो 3000 लोगों को यीशु की भाषा फैलाने वाला था। जब वो दूसरी दफा कलाम बोलता है तो 5000 लोगों को खुदा की भाषा फैलाने वाला था। इसी तरह आज मेरे और आपके वसीले यीशु ने काम करना चाहता है। आज मेरे और आपके वसीले यीशु इस मलेशिया के अंदर ने काम करना चाहता है, क्योंकि बतेरो लोगों में से नापाक रूह में बड़ी आवाज चला चला कर निकल गई और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए और मलेशिया शहर में बड़ी खुशी हुई। क्योंकि जो बोल रहा है वो जिंदा है। क्योंकि जिस शहर के अंदर ये मौजूद होते हैं हम उस शहर में जी रहे हैं, हम उस शहर में बस रहे हैं, हम उस मुल्क के अंदर जहाँ पे जी रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर खुदा मौजूद करने को है, जिस मुल्क के अंदर खुदा जो कि है अपने आप को जाहिर करने को है। क्योंकि जहाँ पे शागिर्द बसते थे उस शहर में ये मौजूद हुए और उस शहर में खुशखबरी आई। आज यीशु के शागिर्द इस वलेंसिया के अंदर है, आज यीशु के शागिर्द इस स्पेन के अंदर है, तो यहाँ पे यीशु के नाम के अंदर यीशु के नाम को वसीले खुशखबरी लाएगी और लोग खुशी पाएंगे और खुशी मनाते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। खुदा मेरे और आपका इंतजार करता है कि कब मेरे बेटे और बेटी इस चीज के लिए मुवफ्फिक हो। यीशु पतरस की जिंदगी के परफेक्ट टाइम का इंतजार करता रहा और जब उसका परफेक्ट टाइम आया तो उसको एक जबरदस्त पिक्चर बना के देखा। यीशु बहुत से लोग समझते हैं पतरस चलता होगा, यीशु चल रहा होगा, पतरस को बुलाएगा, पतरस के पीछे आगे, इतना नहीं है। 30 साल की उसकी जिंदगी की बात है। और इससे पेश कर कि जो क्या है वो पतरस उसके पीछे आता, 2 आना झील के अंदर ऐसा लिखा है और यीशु वाला मेरे पीछे उन लोग खाई थे, मछलियां ला रहे थे, तो मैं तुमको आगे भी बताऊंगा, मगर एक झील उसको बड़ी तफसीलन सिखाती जाए। यीशु जब कलाम सुना रहा था, कलाम सुनाते जब वो किश्ती में गया तो 2 किश्तियाँ थी, एक शमाउन की किश्ती थी जो बाद में पतरस खिलाया था और यीशु ने कहा कि चल मेरे साथ। वो ये जान को कभी भी गहरे में नहीं लेके जाता, काम करके आया था शमाउन, मगर यीशु को उसकी किश्ती इतना जलाना होगा। यीशु ने लोगों के साथ पहले जिंदगी बिताई तो यीशु को जानते थे, इसलिए यीशु के कॉल में जो वक्त आया, जब यीशु का वक्त आया, यीशु ने उनको बुलाना शुरू कर दिया। बहुत से लोग समझते हैं कि उसको बाद ऐसा नहीं हुआ। इस तरह नहीं है बिल्कुल तौर पर। बाइबल इस चीज की इस तरह नहीं मुझे और आपको सिखाती। लूका रसूल के भी 5वां बाब The Gospel of Luke, chapter 5 and verse number 4. ये भी इस सिस्टम का एक हमें बताना चाहिए। जब कलाम का शमाउन से कहा गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जा जाकर, और ये बात मदीना रसूल के जी 4 बाब और उसकी 18 नंबर आयत में है।
तो आपकी 18 नंबर है, अगर तुम पढ़ सके। और उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों यानी शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वो माही थे। आगे आगे। और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बना दूंगा। यहाँ पे सिर्फ ये बताया जा रहा है कि ये जाल डालते थे और उससे यीशु ने कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बना दूंगा। मत्ती रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 16 नंबर आयत हम लोग पढ़ेंगे। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 एंड वर्स नंबर 16। और गलील की झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और शमौन के भाई इंद्रियास को जो झील में जाल डालते देखा क्योंकि वो माही थे। और यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। वो फिर जाल छोड़कर ये दो अनाजील मत्ती और मरकस ये बताते हैं कि उसने उनको बुलाया, मगर लूका इसको कंप्लीटली डिफाइन करता है किस तरह बुलाया। ये कोई इस तरह नहीं था। ऐनी यीशु को नहीं बोला जाता था कि ये सूद लेने वाला ला रहा है। वो पहले मती सूद लेता था, तो उसको जानता था इसलिए तो मती बोला आ जा मेरे पीछे। पागल नहीं था मती को सबको वहां पे बैठते नहीं नहीं हुआ। यीशु पहले भी उसका दोस्त था। यीशु के दोस्ती के ताल्लुक था। ऐसे नहीं यीशु ने कहा कि कौन है जो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान देता है। यीशु उनका दोस्त भी था। यीशु का उनके साथ दोस्ती का एक रिश्ता था। और यीशु वो दोस्त नहीं है जो अक्सर अच्छे वक्त में आपका दोस्त रहे या आपके बुरे वक्त में सिर्फ आपका दोस्त हो। यीशु आपके अच्छे वक्त का भी दोस्त है, बुरे वक्त का भी दोस्त है। यीशु पतरस के अच्छे वक्त का भी दोस्त था और पतरस के बुरे वक्त का भी दोस्त था और पतरस के बेहतरीन दौर का भी दोस्त था। जब पतरस ने जीवन बना दी, पतरस ने ऐसे नहीं छोड़ दिया था। पतरस से यीशु का एक रिश्ता था। और लूका इसको कंप्लीटली डिफाइन करता है। जब यीशु कलाम सुना रहा था और कलाम सुना कर लोग इतने हो गए जैसे दो किश्तियों में जा वो चला गया और दो किश्तियां निकली, शमौन की और शमौन के भाई की हो सकते हैं। और उनको बोला आगे भेजो। जब कलाम सुना दिया उसने बोला इन बेचारों ने कुछ नहीं देखा। देखो यीशु कितना अच्छा दोस्त है। उसने देखा मेरे दोस्त शिकार करने का कुछ नहीं पकड़ के लाया, ये कहां से आज खर्चा करेगा। उसने बोला गहरे में ले। और अगर लूका की चीज को उसको कंप्लीटली नहीं करें तो साफ साफ लूका जो शमौन था उसको कहता है हमने सारी रात शिकार के हमने कुछ नहीं पाया, फिर भी तेरे कहने पे जाल डालता हूँ। शमौन इतना बेवकूफ नहीं है, मछेरा है। मछेरा हो किसी आम आदमी बोलेगा कि बोरक में डालू नहीं, क्योंकि यीशु को जानता है। यीशु का उसका कॉन्टेक्ट था, यीशु का उसका रास्ता था। इसलिए यीशु ने बोला वो कौन सा दोस्त है जो अपने दोस्तों की अपनी जान दे। वो कहता मैं वो दोस्त हूँ तुम दोस्तों तुम्हारी जान दूंगा। यीशु दोस्ती निभाता है। मैं और आप दोस्ती निभाते हैं उसके साथ। Please remember one thing. Jesus is the only way to heaven. There is no other way. मगर आप क्रॉस में लेके जाते क्या करोगे? यीशु क्या बोलोगे? मैं तेरी कौन कितनी हुए लेके जाऊँ अपने साथ। यीशु को कम से कम कितनी हुए आप देना चाहते हो? जिस दिन आप यीशु की बादशाह में जाओ आप बोले यीशु ये हुए मैं तेरी जीत के लाया, ये रूह है जो तूने मुझे बरकत दी थी, मैंने बरकत तुझे में ट्रांसफर किया। 6 नंबर आयत में क्या लिखा है? 6 बात उसमें ये लिखा है रसूलों ने उनके ऊपर हाथ रखा और उन्होंने रसूलों का खड़ा किया और उन्होंने दुआ करके उन पर हाथ रखे। उन्होंने बरकत को कन्वर्ट किया ताकि खुदा की खिदमत कर सके और किसी और की जिंदगी में भी सुना सके। Jesus is waiting for you and is waiting for me to do it.
क्या मैं और आप इसके लिए तैयार हैं? अगर मैं और तैयार हूं तो सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। And declare it by yourself. Let us declare it. Say it by yourself. Ask God what you want from him. यीशु ने पौलुस को डायरेक्ट आके बात की थी, पतरस के वसीले नहीं की। यीशु ने पतरस को डायरेक्ट आके माफ किया था, किसी और को नहीं भेजा। कोई डायरेक्ट आपसे बात करेगा, आप उससे पूछें क्या खिदमत आप लेना चाहते हैं, क्या खिदमत वो आपको देना चाहता है, क्या खिदमत आपकी जिंदगी में है, क्या बरकत आपके पास है, क्या मौज आपके हाथ के अंदर है। Let us declare it. Let us declare it. Let us declare it. हम सब दुआ करें। सुनो रो करो रो बारा। लोसो थोरो रो बारा रा 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 बारा रा। लोसो थोरो रो बारा रा बारा शाखारा रा बारा रा। हर एक दिमाग को दे, हर एक लाभ वितरण करने लगे और हर एक जिंदगी में तेरे करने लगे कि वाकई ही मैं और आप यीशु के शिगिर्द हैं, कि मैं और आप वाकई ही यीशु के चुने हुए हैं, मैं और आप वाकई यीशु के मंसूब हैं, मैं और आप वाकई यीशु के खून खरीदा है और मैं और आप वाकई ही अंजीर ओनानी के चुने गए हैं। मेरे और आपके मुख के अंदर कुदरत है, मेरे और आपके मुख के अंदर जिंदगी है और मेरे और आपके मुख के अंदर जिंदगी भरी हुई है। रोशो को रोबारा हमारा शाखा रोशो को रोबारा हमारा शाखा लेशो को रोबारा हमारा शाया। There's a miracle in your life. There's a miracle through your life or any other else. But God wants you to use that miracle. God wants you to make that miracle. God wants you to say that miracle. God wants you to ask this miracle for someone. And Jesus loves you and also. And Jesus is also with you. यीशु आपसे भी प्यार करता है और यीशु आपके साथ भी है। Do you love Jesus? Are you ready to serve him? यीशु आपको भी बुला रहा है, यीशु आपके भी साथ है और यीशु आपके वसीले काम करना चाहता है। यीशु आपके वसीले लोगों की जिंदगियां बदलना चाहता है, यीशु आपके वसीले लोगों को बरकत देना चाहता है। He has a miracle for you to manifest that miracle in someone else's life, and that miracle is your personal testimony for someone. Say and tell this testimony to someone, because Jesus is the Lord of Lords, Jesus is God of God, and there is no one else like Jesus Christ of Nazareth. We pray for you, we declare a blessing for you, we declare a blessing for your family, and we declare a new time for your family. In Jesus' mighty name we pray for you. In Jesus' mighty name we pray for you. In Jesus' mighty name we pray for you.